میں محمد ویس نیوز فرینچ چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم مقدس حج کے سفر کی بات کریں گے۔ مقدس حج کے سفر پر اب لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ پہلے جا چکے ہیں۔ آج ہم حاجی ریاض صاحب سے ان کے سفر کے حج کے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی کیا یادیں ہیں، کیا انہوں نے محسوس کیا اپنے پہلے حج کے سفر میں۔ حاجی جی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سفر کی یادیں تو ابھی تک جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہیں، اور جب حاجی لوگ جاتے ہیں دل پھر سے جو ہے توقع لگتا ہے کہ ہم پھر جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو حج کے بارے میں آپ معلومات کر رہے ہیں مجھ سے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلا جو سفر ہے میں نے پانی کے جہاز سے کیا 1984 کے اندر، اور اس وقت یہ ماحول تھا اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یا اللہ مجھے بھی حج پر بلا لے اور میں پانی کے جہاز سے سفر حج ادا کر سکوں۔ تو اس وقت ہماری عمر کل 27 سال کی تھی۔ ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دے۔ تو بس ہر وقت جو ہے ذہن کے اندر یہی رہا کہ لوگ کس طرح جاتے ہیں پانی کے جہاز سے، تو کیوں نہ میں بھی پانی کے جہاز سے سفر کروں۔ اس وقت میں نے کئی لوگوں سے معلومات کی جو بزرگ تھے اور پہلے حج بھی کر چکے تھے وہ پانی کے جہاز سے، تو انہوں نے یہی کہا جس کے پاس بھی میں گیا کہ بھائی لوگ 5-5 7-7 10-10 سال ہو گئے ان کو درخواست ڈالتے ہوئے پانی کے جہاز سے، تو وہ محروم ہو جاتے ہیں ہر سال۔ اور دہلی کی کل 21 سیٹیں ہیں پانی کے جہاز کے لیے، کیونکہ پورے ہندوستان کے جو ہے وہ کوٹا بانٹ رکھا تھا۔ کل 21 سیٹیں تھیں جو دہلی سے منتخب ہوتے آدمی۔ پھر بھی میں نے اور لوگوں سے پتہ کیا، میں کہنے کہ تم پانی کے جہاز سے ڈالو گے، میں جو 5-5 سال سے لین میں لگے ہوئے ان کے تو آ نہیں رہی، لہٰذا یہ ہے کہ جہاز سے چلے جائیں آپ۔ لیکن ایک لگن اور امنگ جو تھی وہ پانی کے جہاز سے تھی، ایک کڑک کہ بھائی جانا پانی کے جہاز سے ہی۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا رہا، اور ایک جو ہے امید سی کچھ مجھے بندی قدرتی کہ آپ پانی کے، میں خود جو ہے یعنی کہ پانی کے جہاز سے میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی میں درخواست ڈالوں گا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی جو ہے یہاں گلی قاسم جان میں بلڈنگ تھی، تو وہاں پر یہ حج فارم وغیرہ بھرے جایا کرتے تھے۔ تو میں وہاں پہنچا، میں نے وہاں فارم اپنا بھروایا۔ وہاں اس وقت جو ہے وہاں کے سیکریٹری جو ہے عتیق صدیقی تھے، اور اس وقت کی چیئرمین جو ہے وہ جو ہے تاجدار بابر، وہ تھی راولگنج میں قیام پذیر تھی، ان کی کوٹھی تھی وہاں پر۔ تو بہرحال وہ میں نے جو ہے درخواست دی، اور وہ 3200 کچھ روپے جو ہے کرائے کے میں نے وہ تھے۔ تو میرے پاس جو ہے قرآن اندازی کا لیٹر آیا، راولگنج کے اندر جو ہے قرآن اندازی تھی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا، جبکہ جو کہ وہ قرآن اندازی کا انہوں نے رکھا تھا۔ تو میں قرآن اندازی میں تو گیا نہیں، لیکن یہ ہے کہ عصر کی میں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جو ہے میں دعاؤں میں مشغول ہو گیا، اور اللہ سے بس نہیں بیٹا مسجد کے اندر میں نکلا نہیں مغرب تک، اور دعائیں کرتا رہا، اور ادھر قرآن اندازی چلتی رہی، کیونکہ طلب تھی، لگن تھی، اور دل کو یہ بھی یقین تھا کہ انشاءاللہ جب تم نے کوشش کی ہے تو اللہ اس کو کامیابی بھی دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن جو ہے
दिल्ली कासिम जान में जो मैंने जमीयत उलमा की वो बिल्डिंग बताई, जी जी जी। वहाँ पर जो है लिस्ट लग गई और उसमें 21 आदमियों के नाम पूरे के अंदर। जी जी। तो जब मैं वहाँ वो देखने गया तो 79 BL 79 मेरा जो है कवर नंबर था 1। अच्छा अच्छा। तो मैंने लिस्ट में देखा तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और एकदम खुशी के आंसू जो है टपकने शुरू हो गए। और फिर मैं अंदर गया ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर लिस्ट की जो मैंने वहाँ पता किया, वो सारे बड़े खुश हुए, मुझे गले लगाए और उन लोगों ने कि आप अपनी उम्र के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने आपको खूब कबूल किया। बहरहाल जैसे ही वो मंजूरी आ गई, इत्मीनान हो गया मुझे और अल्लाह से जो है मैं दुआएं करता रहा आगे के सफ़र के लिए कि किस तरह किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो पहला मेरा आपका सफ़र कितने दिन का था ये? पानी के जहाज़ से जी जी जी, मैं यहाँ से ईद के बाद चला था और तकरीबन जो है मुहर्रम के 11 मुहर्रम को जो है मैं यहाँ वापस आया था। जी। तकरीबन ये 4 महीने का सफ़र रहा। नहीं, यहाँ से मक्का या जहाँ जद्दा गए होंगे वो कितने दिन का सफ़र? हाँ, हमारा जहाज़ जो है तकरीबन बॉम्बे के लिए दिल्ली से हम रवाना हुए थे और वहाँ से जो है अकबरी जहाज़ था हमारा। जी जी। और उसमें तकरीबन 1450-1500 के करीब जो है वो हमें अमले समीर जी जी लोग थे। जी 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 तकरीबन 1400-1450 हाजी थे जी जी और 50 एक अमले के लोग होंगे उसके अंदर। तो 1400 का था, 5-6 मंजिला जो है ये जहाज़ था। जी। तो जब हम वहाँ से बॉम्बे से जहाज़ में गए तो सब कुली वगैरह पहले से ही जो है वो हमारे लिए मौजूद थे। जी जी। उन्होंने सामान वामान उठाया तो वो अपने मुसाफिर खाने ले गए, साबु सती के मुसाफिर खाना है क्रेडिट मार्केट के पास। जी तो वहाँ हम तकरीबन 2 दिन रहे, तीसरे दिन हमारी रवानगी थी। तो वहाँ से उन्होंने सामान उठाया, पोर्ट पहुँचा दिया और वहाँ से जो है सामान जहाज़ में लादा और उसके बाद जो है वो तकरीबन मगरिब के बाद जो हमारा जहाज़ वहाँ से रवाना हुआ। जी जी। अब वो समंदर के अंदर जो है तकरीबन 11 दिन 11 रात जो है उसमें चलता रहा, सफ़र किया। लेकिन चलते चलते जो है 2-1.5 दिन पहले अदन पर जो है आता है टॉप जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो है उसने लंगर डाला, वो ठहर गया। अच्छा। अदन एक जगह है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एक छोटा सा मुल्क भी है अदन। जी जी। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि उसने जहाज़ में इसलिए लंगर डाले हैं कि वहाँ पर जो है वो पेट्रोल वगैरह जो है उसके अंदर जो भी जहाज़ का तेल वगैरह होता है उन्होंने वो लिया वहाँ से। जी जी जी। तो 2-3 घंटे के बाद जो है वो फिर जहाज़ वहाँ से चलती है। जी जी। अब यहाँ से क्योंकि ये लमलम जो है करीब था, जी जी। तो इससे पहले हमें जो है जहाज़ के अंदर अपने एहराम बांधने थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम सब ने एहराम की जो है बांधने की तैयारी की, हमने खुद भी बांधा और जो साथी थे लोग थे हमारे आसपास, हमने उनके भी एहराम बांधा। जी जी। और पूरे ये 10 दिन 11 रात या 11 दिन 10 दिन जो भी थे बहरहाल, इसमें हमने सीखने सिखाने का काम किया जी जी। कि भाई हमने क्या करना है, किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, वहाँ पर तवाफ कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, हज कैसे करेंगे, ये सब मामला जो है हमने हज की तैयारी के हमने 10-11 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लिए। जगह जगह जो है हम हर नमाज के बाद बैठते थे, हल्के लगते थे। कभी तवाफ के ऊपर बात होती थी, कभी सफ़ा मरवा के ऊपर बात होती, कभी बिना के ऊपर बात होती, कभी अरफात के लिए बात होती। तो उसमें तमाम मसले मसाइल के साथ में जो है तमाम अरकान जो है हमने अपने जहन नशीन किए और दूसरों को भी कराया। तो हमें ये महसूस होता था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना अल्लाह ने वक्त दिया पानी के सफ़र के अंदर कि हम बहुत कुछ जो है सीख जाए। तो फिर हमने पहले से भी जो है तैयारी की, तो तकरीबन जो है वो बराबर रहा। और जो पानी के जहाज के सफ़र में कुछ इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या वगैरह कोई पेश आया? हाँ, वो बुजुर्ग लोग थे जो उनकी मौत हुई। अच्छा। और वो
यलमलम से पहले ही जो है गुजर गए थे रास्ते में ही, अच्छा अच्छा क्योंकि उनको जो है उल्टियाँ के ये वो जब से मतलब वो गए थे, तो जब से उनकी तबीयत नासाज थी। हालांकि पूरी डॉक्टरों की टीम थी, वो हर एक केबिन का मायना करते थे, हर एक को देखते थे, और हर तरह की जहाज में सहूलत थी। कैंटीन भी थी, उसके अंदर जो मर्जी आप खाइए पीजिए, और टाइम से जो है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और फिर रात का खाना, ये बराबर जो हमें मिलता रहा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। जी 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 और कुछ जिम्मेदार हजरात थे, नमाज के वक्त के अंदर जो है वो अजान दिया करते थे। ये सब अपनी अपनी जगहों पर थोड़ा थोड़ा वो जगहें बना रखी थी, क्योंकि जहाज को इतना लंबा 1400 आदमी एक जगह नहीं घूम सकते, जी 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 तो अपने अपने हिस्सों में आन के जो है इमामत करके अपना नमाज पढ़ाते और वहीं जो है हल्के लगते थे। जी 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 इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 11 दिन का सफ़र तय हुआ। जब हमने वो इहराम वगैरह बांध दिए, दूसरे दिन जो है हम जद्दा एयरपोर्ट पोर्ट पर पहुंच गए। जी जी तो वहाँ तकरीबन 4 घंटे हमारा जहाज़ खड़ा रहा। उसके बाद हमें नीचे उतारना शुरू किया। सामान वगैरह इतना हम नीचे उतरते, सामान वगैरह जो है पहले से ही मौजूद था वहाँ नीचे उतरा हुआ। जी जी डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने चेकअप किया, देखा भाला अपना, उन्होंने ओके किया कि आप ये लोग ठीक ठाक हैं। तो उनको जो है सबको नीचे उतारा। वहाँ जो है हम हॉल से बाहर निकले, सामान हमारा गाड़ियों के अंदर जो है पहुँचा दिया गया था मदीना पुलिस जहाज एक गड्ढे के अंदर। जी जी तो वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, उसमें बेड डाल रखते थे। तो वहाँ हमें जो है 24 घंटे रखा गया कि भाई आप यहाँ आराम कीजिए, खाना पीना कीजिए, और आपका सामान ये बाहर जो है लाउंज में पड़ा है, और जब आप जाएँ तो अपना सामान अपनी बसों में रखें और मक्के के लिए रवाना हो जाए। और इसके लिए हमारे आदमी आएंगे, आपको बताएंगे कि बस में किसको जाना है। उस तरतीब से जो है हमने जो है उसके अंदर जो है मक्के तक का सफ़र किया। वहाँ जब हम पहुँचे मक्का, तो अलजियात के अंदर हमारा मौलवी था। अच्छा अच्छा हाँ, तो जाकिर सिकंदर, जी जी उसके यहाँ हम उतरे, क्योंकि हम हमारे बंधे हुए थे, और जो हमने सीखा था उसी पर अमल कर रहे थे। जी जी हमने वो सामान वहाँ पर आराम से रखा। मौलवी भी जो है हमें वो खाने वगैरह दिया, वो हमने इत्मीनान से खाया। और मौलवी ने जब मुझको देखा तो उसने मुझे ही बुलाया और उसने बातचीत की। उर्दू जानता था वो, अच्छा। हैदराबाद का मौलवी था, वो वहाँ जो है क़याम पजीर था। तो उसने जो है बुला के मुझसे कहा कि भाई अपने साथी को बोलो आप, जो हम एक बस के साथी वहाँ उतरे थे, जी 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 और अभी हमारा जो है वो आएगा, आपको जो है तवाफ़ कराएगा। उसको मुतव्वा बोलते हैं। जी 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 तो 12 हमने सब पूरे किए, मरवा पे पहुँचे। ये हमारा उम्रा हो गया। जी अच्छा, तो बीच की बातें रह गई क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ नहीं बीच की हाँ, तवाफ़ के बाद जो है वो हमने जो है वो आन के जो है 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़े। जी 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 उसके बाद में जो है हमने अल्लाह से दुआ की। फिर हमने नीचे आए, उसी के नीचे तहखाना है, वहाँ जमजम के वो हैं, उस पर जाके हमने पानी पिया। पानी पी के जब हम चले सफ़ा के लिए, तो फिर एक इस्लाम करना पड़ता है, जो नवा इस्लाम होता है हज़रत अस्वद की तरफ इशारा करके फिर हमें सफ़ा की मरवा की तरफ जाना होता है। अच्छा तो ये सब कुछ हमने किया, जी जी और फिर हम पहुँच गए। फिर इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, जी जी तो वो पूरा करके हम जब मरवा पे पहुँचे, वो आखिरी हमारा चक्कर था, वहाँ दुआएँ हमने की, अल्लाह से मांगा जो भी कुछ गलतियाँ हुई अल्लाह माफ़ कर दे। जी और जो हमारे ये तवाफ़ को मरवा के रोकने को जो कबूल करना, और यह उम्रा पूरा हो गया, अल्लाह की मेहनत कबूल करना। जी जी बहरहाल, और जो भी जो कोई दुआ मांगे अपने अपने तौर से वो मांग सकता है, इसमें कोई वो जी नहीं। जी उसके बाद हम बाहर निकले, तो वहीं जामों की दुकानें थी, और कुछ वैसे ही पटरी पे थे हजाम बाहर बैठे। जी जी तो वो थोड़े ज़्यादा पैसे लेते थे दुकानदार, वो थोड़े कम पैसे लेते थे। अच्छा, उसमें भी वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी थे। अच्छा अच्छा हाँ, वो भी समझते थे। मुझे अपना किया, एक उस वक्त एक रियाल के अंदर जो है हमने अपनी सर मुंडा गए, हम सबको लेके वहाँ मौलवी के पास आ गए। वहाँ पर हम नया जो अपने कपड़े के दिन नहीं आया,
है। तो बीच के दिनों के अंदर हम अपना जो है तवाफ करते रहे नकली बस, और कुरान करीम का पढ़ना, तहज्जुद का पढ़ना, इशराक कर पढ़ के आना, तहज्जुद में जाना, तहज्जुद पढ़ना, फजर पढ़नी, इशराक के बाद वहाँ से चलना, रहना के नाश्ता करना, आराम करना, फिर दोपहर की जोहर की नमाज़ पढ़ना, जाकर जोहर के बाद आन के खाना खाना, थोड़ा आराम करना, फिर असर मगरिब इशा ये इकट्ठी नमाज़ें पढ़ के हम आए। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा, लेकिन उस वक्त जो है पब्लिक इतनी नहीं। हाँ, हिंदुस्तान से कोई 45-47 हज़ार लोग गए। कितने का ये सफ़र आपका हुआ था, कितना रुपया खर्च हुआ? बहुत कम पैसा, तकरीबन जो है होटल अगर आप लगाएं, जो मैं कुछ सामान वगैरह भी लेकर आया था, जिसमें खजूरें हैं, कुछ रुमाल थे, कुछ टोपियाँ थी, कुछ नमाज थी, और कुछ टोपे टाइप में जैसे अपना बहन बेटी को देने के लिए वो, तो तकरीबन जो है कुल 12,000 के अंदर ही है सफ़र जो है हुआ। और उसमें जमजम भी हम तकरीबन कोई 80 लीटर जो है जमजम लेकर आए, जिसमें पानी के बड़े बड़े पीपे होते, उसके अंदर हमने जमजम भरा, और 2 पीपे थे मेरे पास बड़े बड़े, जो हमने 40-40 लीटर के भर लिया, और वो हम लेकर आए। पानी का जहाज तो उसको क्या पड़ा, ना कोई ऐसी मुमानी है जो आप 1 ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, तो कोई कैद नहीं थी, कोई जितनी उसकी हैसियत है, जितना वो बहुत बर्दाश्त कर सकता है लिया है। तो 12 उस वक्त मुझे पूरे इलाके का मामला था, उस वक्त पानी के जहाज से लोग कम जाते थे, और जहाज से भी कम ही जाया करते थे। हाँ, कम ही। तो इतना शौक हुआ है कि अल्लाह का फजल है कि हम नौजवान करके जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हमने अपने उससे उम्र के हिसाब से लगाया कि वाकई जो है जवानी का है, जवानी का होता है, तो उसमें आदमी थकता नहीं है, और जज्बा होता है करने का, शौक होता है करने का, मस्जिद जो है मतलब उसके बाद आसानी कर लेता है, समझे, ना पसीने की परवाह उसको, ना किसी चीज़ की परवाह। लेकिन जब हम गए थे उन दिनों के अंदर, तो वहाँ पर ये एसी वगैरह नहीं थी। बहुत खास जगहों पर जो जैसे मॉर्निंग का रूम है उसके अंदर एसी है, या कोई स्पेशल जहाज है उनके लिए एसी के रूम है। हरम में एसी का इंतजाम था उस समय? हाँ, हरम में था जी, हरम में था उस वक्त एसी का इंतजाम। और बाकी वही सीधे साधे मकान थे पहले पुराने तर्ज के ऊपर, खिड़कियों पे चिके डली रहती थी, ताकि जो है वो गर्म हवाएं अंदर ना आए, और अंदर जो है मकानों के अंदर जो है वो पंखे चलते थे, और कहीं कहीं हमने कूलर भी देखे, जैसे कि जो हमारे हिंदुस्तान में चलते हैं वो भी चला करते हैं वहाँ पर। जैसे जैसे दौर गुजरता गया वहाँ पर की होती है, तमाशा लगी कोई कमी नहीं। तो उस वक्त ये हालात। ठीक है दोस्तों, हाजी जी से हमने उस समय के हज के बारे में बात की, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हाजी जी ने दी जो हमें या हमारे उम्र के लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया हाजी जी।